Jai Hind everyone. Today I Gaurav Kumar, Assistant Professor in CSE Department AKGEC, will discuss about the introduction of Java. What is Java? Why we use Java? Where it is developed? And many more things about Java. Firstly, we will discuss about when it was invented and by whom it was invented. Java was first developed by Sun Microsystem in 1991, later acquired by Oracle Corporation. Means जब डेवलप हुई थी तब ये सन माइक्रोसिस्टम ने इसे डेवलप किया था 1991 में, और उसके बाद अब ये ओरेकल के पास है। जो भी इसमें डेवलपमेंट होता है, जो भी काम होता है, वो ओरेकल के थ्रू हम करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, जिस पर्सन का नाम है जेम्स गॉसलिंग, एंड पैट्रिक नोटैम, जो पर्सन थे जावा को डेवलप करने के लिए। It is a simple programming language. Writing, compiling, debugging a program in Java is very easy. If we are writing a program and compiling it, and after compiling, if there are any errors, then we will debug them to remove it. And for successful running of that program, it help to create modular program and reusable codes. Means if we write the code, then it will be reused in many programs. These are the key features of Java, that why we use it. First feature is object oriented. Means Java can be easily extended since it is based object based model. Second is platform independent. Unlike many other programming language, C and C++, Java is compiled. It is uh, into platform specific machine rather than platform independent bytecode. This bytecode is distributed over the web and interpreted by the virtual machine. That is, we call Java virtual machine. Another key feature is that it is very simple. Java is designed easy to learn if you understand the basic concept of OOPS. In further slide, we will discuss about the OOPS, what is OOPS, and how it help to understand that this is a simple language and secure. Means it has a security. Java secure feature is enabled to develop a virus-free, tamper-free system. Authentication techniques are based on public key encryption. These are the encryptions, how we use that login ID or password, that how we encrypt them, that anyone cannot see what are the passwords and login ID for any of them. Architectural neutral. Java compiler generate an architecture neutral object file format which makes compiled code executable on many processors. Means अगर मेरे पास कोई एक कोड है तो मैं उस कोड को एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल कर सकता हूं और उसे यूज कर सकता हूं इफ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे विद द प्रेजेंस ऑफ जावा रन टाइम सिस्टम. पोर्टेबल means I can port from one place to another place easily. Robust. Java makes an effort to eliminate error prone situation by emphasizing mainly on compile time. जब हम compile करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर एरर है तो वो compile टाइम पे ही हमें बता देगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये एरर्स हैं, पहले इनको रिमूव कीजिए, उसके बाद जाके वो प्रोग्राम रन होगा. मल्टी थ्रेड्स. मल्टी थ्रेड का मतलब है कि there are different smaller sub process which is running smoothly for a particular process. Means अगर मेरे पास कोई एक प्रोसेस है, इसके अंदर मल्टी थ्रेड है, मान लो 2, तो ये जो दोनों सब प्रोसेस हैं, ये दोनों स्मॉलर प्रोग्राम है किसके लिए? इस लार्जर प्रोसेस के लिए. तो ये थ्रेड्स के बेसिस पे भी काम करती है. Interpreted means Java bytecode is translated on the fly to native machines instruction and is not stored anywhere. High performance. With the use of just-in-time compiler, Java enables high performance. Distributed
Java is designed for distributed environment of the internet. Dynamic means Java is considered to be more dynamic than C and C++. It is designed to adapt to evolve environment. Java program can carry extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve accesses to object on runtime. Applications means where we can use Java in desktop application, web application, enterprise application, mobile application, embedded system, smart card, robotics, games. These are the different fields where we can use Java. This is the type of Java कि हम कितने टाइप के वेब एप्लीकेशंस जावा को यूज करके बना सकते हैं. पहला है स्टैंड अलोन जावा. स्टैंड अलोन जावा का मीन्स क्या है कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम विंडोज के लिए बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, दीज आर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर विच वी नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन. तो जो भी हम यूज करते हैं एवरी मशीन, मतलब किसी भी मशीन पे, और उनको हम जावा की हेल्प से बना सकते हैं विंडो बेस्ड के लिए. वेब एप्लीकेशंस दूसरा इसका टाइप है. वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि सर्वर साइड पे जितने भी हम डायनेमिक पेज क्रिएट करते हैं, सर्वर साइड मींस दैट फ्रंट साइड, फ्रंट एंड तो वो होता है जो हमें किसी भी वेबसाइट के ओपन करने पर दिखता है, और बैक एंड वो होता है, या सर्वर साइड उसको हम कहते हैं, बैक एंड और सर्वर साइड, कि जो बिहाइंड दैट वेब पेज काम करता है. तो वहां हम जावा को यूज कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग, जेएसपी, श्रट्स, हाइबरनेट, जेएसएफ टेक्नोलॉजी हैं जो क्रिएट करती हैं वेब एप्लीकेशंस को. एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जितनी भी, चलो पहले an application that is distributed in nature such as banking application, जितनी भी लाइव एग्जांपल जहां हम, जैसे एक तो बैंकिंग एप्लीकेशन है, दूसरा रेलवेज है जहां पे हमें हाई सिक्योरिटी कह लो या फिर लाइव स्टेटस कह लो, किसी भी चीज का हमें अगर देखना है तो वहां भी हम जावा को यूज कर सकते हैं. और मोबाइल एप्लीकेशन तो देखिए बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन जावा में क्रिएट होती हैं मोबाइल के लिए, और करंटली एंड्रॉइड और जावा MER यूज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस. So these are the types of Java where we can use. First is standalone, web application, enterprise, and mobile application. This is the OOPS concept of Java, which is very important for understanding what is OOPS and how it is helpful to become it more easy. There are mainly 6 concepts in that. Firstly, we will discuss about from object. What is object in Java? After that, we will discuss about what are classes in Java, abstraction, polymorphism, inheritance, and encapsulation. If we will discuss about OOPS, then these are the 4 concepts which is followed by Java, which is help in understanding the what is OOPS concept. Firstly, we will discuss about what is object. Object means a real world entity such as pen, chair, table, computer, watch, etc. Anything which is seen. जैसे हम यहाँ दिख रही हैं, बाइक है, कीबोर्ड है, टेबल है, ये एक ऑब्जेक्ट है. क्या है? An object can be defined as instance of a class. Means अगर हम जब हम क्लास की बात करेंगे तो जब क्लास में देखेंगे तो उस क्लास का एक छोटा सा इंस्टेंस जो कहलाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा. जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो ये देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है. तो फर्दर वीडियोस में हम फर्दर स्लाइड्स में हम देखेंगे. एन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन मेमोरी. जब हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी मेमोरी में, और उसका कोई ना कोई एक एड्रेस भी होगा. मान लो ये मेमोरी में 10 बाइट की उसे 10 KB की उसे मेमोरी एलोकेट हुई, तो इसका कोई एड्रेस होगा और मेमोरी में से स्पेस भी अवेलेबल होगा. किसको? ऑब्जेक्ट को. अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ ईच अदर. डेटा और कोड हमें उससे मतलब नहीं होता है. क्लास, what is class? Class is a collection of object. When it called class,
It means it is a collection of object. What is inheritance? One object acquires all the properties and behavior of parent object. या कह लो कोई एक क्लास है और मुझे इनहेरिट करनी है क्लास बी के अंदर, तो मैं इसे एक्सटेंड करके इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी क्लास ए की क्लास बी के अंदर, उन्हें मैं क्या कर लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, मतलब इनहेरिट कर लूंगा। ये जो होगी ये पेरेंट क्लास होगी और ये चाइल्ड क्लास होगी इनहेरिटेंस के केस में। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? if we perform a task, one task in many forms, if one task is performed in different ways, in more than one ways, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो दो हमें देखने को मिलते हैं, एक तो होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या भी कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। Another OOPS concept is abstraction. Abstraction means if we want to hide the internal details of any program, of any software, if anything which we want to hide internal details of that functionality, मुझे किसी भी फंक्शनैलिटी की इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना है, तो उसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन। इसको भी हम दो तरीके से अचीव करते हैं, एक बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होता है बाय इंटरफेस। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मींस दो तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? बाइंडिंग और रैपिंग ऑफ कोड इनटू अ सिंगल यूनिट। इफ वी बाइंड टोटली परफॉर्म, मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क करना है और उस टास्क का सारा कोड मैं किसी एक क्लास के अंदर बाइंड कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, वो एनकैप्सुलेट कर दूंगा क्या, उस पूरे कोड को एक क्लास के अंदर कह लो या एक जगह पे कह लो, तो उसको क्या कहते हैं हम, एनकैप्सुलेशन। रैपिंग ऑफ डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट नोन एज एनकैप्सुलेशन। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की, ये दो अलग अलग चीजें दिखती हैं हमें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होगी वो इनहेरिटेंस जो होता है उस कॉन्सेप्ट में जो हमने डिस्कस किया, इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, TENCE, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होगी वो सारे के सारे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। और ऑब्जेक्ट बेस्ड जो लैंग्वेज होती हैं वो है जावास्क्रिप्ट एंड VB स्क्रिप्ट आर द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये है जावा का कोई भी एक सबसे छोटा प्रोग्राम अगर देखें तो मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई, क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम नाम से। उसके अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। मैंने एक उसके अंदर मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से, और उसके अंदर क्या लिख दिया, स्ट्रिंग डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड आउटपुट। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया, उस मेन मेथड के अंदर मैंने जो प्रिंट कराना था मैंने वो लिख दिया। सही। अब ये जो यूज हुए हैं यहाँ पे पब्लिक, इनकी जगह पे कुछ और भी यूज हो सकता है, यहाँ तो खैर पब्लिक ही रहेगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर या जावा मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, किस किस के साथ, क्लास के साथ, मेथड के साथ। तो डिफॉल्ट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। इफ वी आर डिक्लेयरिंग एनी मेथड देन वी यूज एक्सेस मॉडिफायर एज डिफॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, एंड दीज आर नॉन एक्सेस मॉडिफायर, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट FP। इन्हें हम यूज तो करते हैं लेकिन स्पेसिफिक जगह पे करते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक काम है। अगर हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया किसी चीज को
तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया किसी चीज को। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ डिक्लेयर किया, बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट एफपी डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा। तो ये एक्सेस मॉडिफायर थे, ये तो नॉर्मली यूज होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, कुछ नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट तो होगा ही। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, ठीक। उसमें एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया और एक स्ट्रिंग टाइप नाम ले लिया। नेम वेरिएबल का नाम है नेम, और उसके अंदर मैंने मेन मेथड बना लिया है। और ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये हमने यहाँ क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1 नाम से। ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से हमें क्या बताना होगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। S1 उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको मेमोरी एलोकेट होगी, वो S1 नाम से होगी। और न्यू कीवर्ड है जो यूज होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और स्टूडेंट वो कंस्ट्रक्टर है जो कॉल होता है। अगर हमने यहाँ देखें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्लास फाइल अपने आप जनरेट कर लेगी, तो वो स्टूडेंट ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। और जब हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं तो जो क्लास का नाम होता है उसी सेम नेम से जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसकी हेल्प से आईडी और नेम के वैल्यू को प्रिंट कर लिया। जैसा कि अगर हम देखें तो हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी आईडी को और नेम को, दोनों को। तो यहाँ अगर हम देखें तो 0 और नल आउटपुट आएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को वैल्यू असाइन नहीं की है, सिर्फ यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उन वैल्यूज को कॉल किया है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास का नाम ही लिखेंगे यहाँ। तो ये यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो था मेन मेथड इनसाइड द क्लास, मेन क्लास, और इसमें क्या है, मेन आउटसाइड द क्लास। ये कोई क्लास है जहां मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेन क्लास बनाई क्लास टेस्ट नाम से। अब मुझे जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा इन दोनों को कॉल करने के लिए, तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ना कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, जो ये इस क्लास का नाम था। अगर इस क्लास का नाम X होता, क्लास X, तो यहाँ पे मैं X लिखता और न्यू X। तो उस केस में जो क्लास का नाम है वही मैं प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ S1 नाम से मेमोरी एलोकेट होगी सेम जैसे होगा, और नल 0 और नल आउटपुट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी मैंने वैल्यू असाइन नहीं की है। दोनों की दोनों सिर्फ मैंने एज इट इज प्रिंट कराई है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो जब भी हमें इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है तो उस वैल्यू को असाइन करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। तो देयर आर 3 वे टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन जावा। पहला क्या है, रेफरेंस वेरिएबल से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दूसरा है मेथड से, कोई भी मेथड बना के हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, किसी भी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम भी उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, रेफरेंस वेरिएबल के ये जो मैंने दिए हैं आईडी और नेम, इनको सीधी वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा और मैं वो प्रिंट करा लूंगा। तो ये तो क्लास मैंने एक सिंपल सी बनाई जिसमें दो वैल्यूज मैंने दो वेरिएबल्स बता दिए। एक test2 नाम से क्लास बना ली और उसका मेन मेथड है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया किस क्लास का, इस क्लास का। तो S1 जो ऑब्जेक्ट था, S1 जो ऑब्जेक्ट था, इसमें मैंने दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक आईडी नाम से और एक नेम नाम से। तो S1 की आईडी में मैंने क्या डाल दिया, 101 वैल्यू, और नेम में क्या डाल दिया, बाला गुरु स्वामी। ठीक, जब भी मैं S1 की आईडी को कॉल करूंगा तो S1 की आईडी की वैल्यू जो भी उसमें स्टोर होगी वो आके प्रिंट हो जाएगी, और ऐसे ही S1 के नेम को कॉल करूंगा जैसे यहाँ किया है, तो ऐसे ही वो आके प्रिंट हो जाएगा। तो जो मैंने दिया है सीधा रेफरेंस वेरिएबल यूज करके, जो फर्स्ट वाला है कि सीधा रेफरेंस वेरिएबल उठाया, S1 की आईडी और वो प्रिंट करा लिया, S1 का नेम वो प्रिंट करा लिया। इस केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 101 और बाला गुरुस्वामी।
ये आउटपुट आएगा। सही, ये तो रेफरेंस वेरिएबल की बात। अब जो दूसरा मेथड है मेरा बाई मेथड के, मगर मुझे मेथड बना के कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो तो कैसे होगी? यहाँ क्या किया है मैंने, दो क्लास बनाई सिंपल सी, रोल नंबर और नेम की, और उसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज को सेट करने के लिए एक void insert record नाम से एक मेथड बना लिया जो दो वैल्यूज पास करेगा। ठीक, और जो इंटीजर आर की वैल्यू पास करेगा वो तो रोल नंबर के पास जाएगी, और स्ट्रिंग की वैल्यू पास होगी जो भी, और वो किसके पास चली जाएगी? नेम के पास। तो वो एक मेथड बना लिया मैंने वैल्यूज असाइन करने के लिए। एक मेथड मैंने बना लिया void display नाम से, ये वाला डिस्प्ले कराने के लिए। ये वैल्यूज के लिए बनाया है, ये डिस्प्ले के लिए बनाया है। ठीक, अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया S1 नाम से यहाँ पे। सही, अब जब भी मैं S1 नाम से इस मेथड को कॉल करूंगा तो उसमें दो वैल्यूज पास करूंगा, एक इंटीजर की और दूसरी स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ किया है S1, वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया है। इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का वो मेथड है जो मैंने यहाँ बनाया है, और जब मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो दो वैल्यूज पास करनी है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। तो मैं जब ये दो वैल्यूज पास करूंगा तो ये मेथड कॉल होगा और इनकी वैल्यूज रोल नंबर और नेम पे जाके सेट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया है जिसमें दूसरी वैल्यूज असाइन करी है, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले को कॉल कर लिया है जो डिस्प्ले कराने का काम करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? तो पहले मैंने 111 पास की थी, 111 करण। S1 का जो आउटपुट है जब मैं S1 को कॉल कर S1 की हेल्प से वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, और जो S2 का है वो 222 आ रहे हैं, ये आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हम मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अगर मुझे यहाँ तीसरा करना होता स्टूडेंट S3 नाम से, तो फिर मैं जब इसको कॉल करता तो S3 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, तो मैं वहां दो वैल्यूज असाइन करता, तो जब वो कॉल होता, और उसके बाद S3 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ये जो तरीके हैं मेरे वैल्यूज असाइन करने के, रेफरेंस वेरिएबल एंड मेथड, ये दो तरीके हैं कि कैसे हम इनकी हेल्प से करते हैं। और ये जो तीसरा वे है किसी की, हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये दो तो थे, रेफरेंस वेरिएबल एंड बाय मेथड। तो जो थर्ड है उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।